हेलो बच्चों, कैसे हो? टुडे आई विल टीच यू क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.6। तो चिल्ड्रन, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा, एनिमीज़ के साथ कीजिएगा, सबके साथ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एंड तक देखिएगा मेरे वीडियो को और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा सो डैट you will keep on getting my coming videos and you will be the first one to view those videos. So let us start our question number 2, part 3. Now this question reads, Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. Means some part of the distance she is traveling by train and some part of the distance she is traveling by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. तो आपको टोटल टाइम दिया 4 hours फर्स्ट केस में. Now if she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 meters longer. Find the speed of the train and the bus separately. Now what do you see in this question, children? Last में what you have to find out? Speed of train and bus separately. So whatever quantities you have to find out, as I have told you earlier also, you have to let them as x and y. So what will be your first step, children? Let the speed of the train x kilometer per hour and speed of the bus y kilometer per hour. And total distance in the question it is given as 300 किलोमीटर. अब आप स्टूडेंट्स इसमें देखिए, आपके पास दो केस दिए हुए हैं. केस 1 में क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में कि रूही ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितना है 300. 60 उसने ट्रेन से ट्रैवल कर लिया, तो रेस्ट डिस्टेंस कितना रह जाएगा चिल्ड्रन? 300 माइनस 60 which gives you 240. So rest of the distance, that is 240 kilometer, she is traveling by bus, right? तो this is your first case. अब इसमें आप देखिए, हम इसमें एक फॉर्मूला आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इसको हम यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट केस में लेट अस सपोज दैट T1 इज द टाइम टेकन टू ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन. सो हाउ मच विल बी T1? यहाँ से फॉर्मूला आप ले लीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. How much distance for T1 time? ये ट्रेन वाला 60 किलोमीटर. सो डिस्टेंस 60 किलोमीटर and speed how much we have assumed for train. Look at the beginning of the question. Let the speed of the train हमने x लिया हुआ है, तो speed की place में you will write down x. So this is your on the formula. After substituting, what you will get? T1 equals to 60 upon x hour. What is T2? Time taken to travel 240 kilometer by bus. So T2 का अगेन फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम का डिस्टेंस इज हाउ मच? 240. दिस इज फॉर बस. एंड हाउ मच इज द स्पीड ऑफ बस? In the beginning we have assumed the speed of the bus y kilometer per hour. So substitute in place of speed I will write down y. So this is the expression for T2. Now if you read the question, these two times together, total time taken to travel this total distance 300 kilometer, it is given as 4 hours. So according to question, total time to travel 300 kilometer is 4 hours. So it means that T1 plus T2, this is the total time. T1 is for train and T2 time taken by bus. So this total time T1 plus T2 equals to how much? You will write down 4 hours. So what will be your next step, children? You will write down T1 plus T2 equals to 4 hours. तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 4 आवर्स. अब ये T1 T2 की वैल्यूज़ आप यहाँ से ले लीजिए. T1 हमने 60 अपॉन एक्स और T2 इज़ 240 अपॉन वाई. जस्ट सब्सटीट्यूट दीज टू वैल्यूज़ ऑफ T1 एंड T2 इन दिस एक्सप्रेशन. सो यू विल गेट 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4. नाउ लुक एट द न्यूमरेटर 60 and 240. What you can take out common? 4. I take out 4 common from the numerator. So what will remain from 60? 15. ये अपॉन एक्स एज इट इज़ प्लस प्लस 240 में से आपने 4 कॉमन ले लिया, तो what will remain? 4 into 60. 4 is common, so this 60 and upon y equals to 4. Right, children? अब इस 4 को this is getting multiplied on LHS. If I bring it on the right hand side, it will go in the denominator. So this full bracket equals to 4 upon ये 4 नीचे आ गया, it equals to 1. So what will this become? 15 upon x. 15 upon x plus 60 upon y equals to 1. ये चिल्ड्रन आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल गया with the help of first case. That was your case 1.
अब केस 2 देखिए चिल्ड्रन, केस 2 में आप नेक्स्ट लाइन अगर रीड करते हो तो इट इज़ सेइंग शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर मीन्स अब वो टोटल टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर्स तो उसका था ही पहले, प्लस 10 मिनट्स और उसमें हम ऐड करेंगे। तो चलिए पहले हम पहला पार्ट, इसका स्टार्टिंग का पार्ट देखते हैं। When Ruhi travels 100 किलोमीटर by train, this is given in the question, she is traveling 100 किलोमीटर by train and the remaining distance कितना रह जाएगा, 100 ट्रैवल करने के बाद ये टोटल डिस्टेंस है, माइनस 100 कर दीजिए, 200 किलोमीटर ये रिमेनिंग डिस्टेंस है, दिस इज शी इज ट्रैवलिंग बाय बस, राइट चिल्ड्रन। सो अगेन व्हाट इज T1, टाइम टेकन टू ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। दैट टाइम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हाउ मच डिस्टेंस, 100 किलोमीटर, तो डिस्टेंस के प्लेस में यू विल राइट डाउन 100 एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन विच यू हैव टेकन इन द बिगिनिंग एज x। सो T1 इक्वल्स टू 100 अपॉन x, तो ये आपका T1 का एक्सप्रेशन बन गया। सिमिलरली T2, टाइम टेकन टू ट्रैवल 200 किलोमीटर बाय बस, दिस इज रिमेनिंग डिस्टेंस 200 किलोमीटर, दिस इज शी इज ट्रैवलिंग बाय बस, सो T2 इज time to travel 200 kilometer by bus. Again use the formula distance upon speed. How much distance children, distance is 200 and what speed is how much, बस का स्पीड हमने बिगनिंग में क्या अज्यूम किया हुआ y, so T2 इक्वल्स टू 200 अपॉन y आवर्स। सो आपके पास ये दो टाइम आ गए T1 एंड T2। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट ये दोनों टाइम का जो सम है इट इज़ 6 मिनट्स मोर देन 4 आवर्स। सो व्हाट विल योर इक्वेशन बिकम, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू, जो फर्स्ट केस में उसने कितना टाइम लिया था, 4 आवर्स। नाउ शी इज़ टेकिंग both the total time is now 10 minutes more. So how will you write your statement, total time taken to travel 300 kilometer, this is 300 is your total distance, it is how much given, 10 minutes longer का मीनिंग है 4 आवर्स तो ऑलरेडी है ही, प्लस 10 मिनट्स और ज़्यादा ले लिया, राइट चिल्ड्रन। तो अब आप देखिए इसमें 4 आवर्स है वो मिनट्स में दिया हुआ है, तो इन ऑर्डर टू ऐड दीज टू टाइम्स आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस मिनट्स इनटू आवर्स। तो दिस इज ऑलरेडी इन आवर्स, सो वी विल कन्वर्ट डिवाइडेड बाय 60 टू कन्वर्ट द मिनट्स इनटू आवर्स। तो 10 अपॉन 60 आवर्स हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1 अपॉन 6। सो नेक्स्ट स्टेप, हाउ मैनी टोटल आवर्स, 4 प्लस 1 अपॉन 6 आवर्स। अब आप इसको अपॉन 1 करके आप इसको एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे, तो यू विल गेट फाइनली how much time, 25 upon 6 hours. So this is the total time to travel 300 kilometer. Now according to your question, T1 plus T2 total time is how much, 25 upon 6, और T1 और T2 हमने already find out करे हुए children कि how much is your T1, look here 100 upon x, T2 is 200 upon y. So this T1 and T2 I will put in this expression. कौन से expression में, this expression. So how much I will write down, T1 100 upon x, T2 is 200 upon y, 25 upon 6. Again what you see, ये हमको इक्वेशन मिल गया सेकेंड पार्ट में से। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। What you see in the numerator 100 200, what common you can take out, you can take out 25 common from the numerator of these two terms. So if I take 25 common from 100 upon x, what you will get, 4 will remain in the numerator upon x as it is. 25 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 8 विल रिमेन अपॉन y, 25 अपॉन 6। नाउ व्हाट नेक्स्ट स्टेप, ये जो 25 आपका LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है, इफ़ आई ब्रिंग इट ऑन द राइट हैंड साइड इट विल गेट डिवाइडेड। सो नेक्स्ट स्टेप में दिस कंप्लीट ब्रैकेट एज इट इज़, ये टर्म ऐसे ही रहेगा, 25 विल कम इन द डिनोमिनेटर एंड दिस 25 गेट्स कैंसल, यू आर लेफ्ट विथ 1 upon 6. So finally what you obtain, 4 upon x plus 8 upon y equals to 1 upon 6. So this is your simplified equation number 2, उसको हम नेम कर देते हैं, राइट। और इक्वेशन, अब इन दो इक्वेशन हमारे पास आ गया है। नाउ अगेन आई राइट डाउन द 2 इक्वेशंस टुगेदर। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या ऑब्टेन हुआ था चिल्ड्रन फ्रॉम फर्स्ट केस, योर फर्स्ट इक्वेशन वाज 15 अपॉन x, आप पीछे देखिएगा दोबारा से, हम ये लेके आए थे 15 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1, और सेकेंड इक्वेशन हमारा ये आ गया 4 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। अब आप देखिए ये दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए। ये आपका फिर से वही फर्स्ट पार्ट में जो हमने क्वेश्चंस कराए थे आपको, उसी पे बेसिस पे आई विल नाउ मेक यू टू सॉल्व दिस एक्स एंड वाई। So what method I have taught you? Again I repeat, those children who have not seen my earlier lecture, please see those videos
in which I have explained you how to solve the first question. 8 parts were there in the first question. So whenever you see x and y in the denominator, what you have to do, ये 1 upon x को I will put as p, 1 upon y को I will put as q. So 15 into 1 upon x कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 15 into p. 60 into 1 upon y कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 60 into q equals to 1 equals to 1. Similarly for the second equation, 4 into 1 upon x कितना हो जाएगा? 4 into p. 8 into 1 upon y will give you 8 into q equals to 1 upon 6. This is 1 upon 6. तो ये आपका p एंड q की फॉर्म में इक्वेशन आ गया. नाउ दीज आर द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स p एंड q. हमने अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया है. ये रिड्यूस हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को. अब इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर p एंड q. नाउ बिफोर सॉल्विंग आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस डिनोमिनेटर. सो व्हाट कैन आई डू? ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि आप हर एक टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सो दैट दिस डिनोमिनेटर विल गेट वैनिश. दिस फर्स्ट इक्वेशन में तो देर इज़ नो डिनोमिनेटर, सो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सो दैट इट रिमेन्स एज इट इज़. सो दिस इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज़. इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 6 इंटू 4 24p, 6 इंटू 8q 48q, 6 इंटू 1 अपॉन 6 6 विल गेट कैंसल, यू विल गेट 1. Right children, now bring this constant term 1 1 on the left hand side. So ये मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिया, कोई बात नहीं. 24p प्लस 48q माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दिस इज 15p प्लस 60q माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब ये जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं चिल्ड्रन, आप इसको अब आप देखिए इसमें जो डिजिट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं p एंड q के, ये थोड़े लार्ज हैं नंबर में. दीज आर थोड़ा बिग नंबर है, 24 15 48 60. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर यू सी द कोफिशिएंट्स आर सफिशिएंटली लार्ज, दे आर मोर कन्वीनियंट टू डू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड. आप इसको सब्सटीट्यूशन मैथड या एलिमिनेशन मैथड से करोगे हो तो जाएगा, बट इट विल बी मोर डिफिकल्ट एंड इट विल टेक मोर टाइम. सो द ईजिएस्ट मैथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड. So that is why I will teach you to solve this equation by cross multiplication method. वैसे तो मैंने आपको ये अपने previous lectures में सब explain करा हुआ है. तो again I will solve. Look at these two equations are your final equations. I will solve it for p and q. तो again what are the steps I told you children? Write down p divide by what you write in the denominator of p. आप p का term जो है दोनों equations में hide कर दीजिए, इनको छिपा दीजिए. Now what you see in the first column, two constants are 48 60. Second column में आप देखते हैं two constants are -1 -1. So what I write in the denominator children? 48, इसको क्रॉस कीजिए -1, तो 48 इंटू -1, 48 इंटू -1, ये माइनस फॉर्मूले का. तो 48 इंटू -1 माइनस -1 इंटू 60, सो यूल गेट -1 इंटू 60. तो ये हो गया p का डिनोमिनेटर. नाउ कम टू q इक्वल्स टू q. व्हाट यू राइट इन द डिनोमिनेटर ऑफ q? अब आप इसे q वाला टर्म हाइड कर दीजिए, इसको छिपा देते हैं. व्हाट यू सी द नंबर्स? फर्स्ट कॉलम 24 15, सेकेंड कॉलम -1 -1. तो इसमें क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर के लिए? आप सेकेंड कॉलम का फर्स्ट नंबर ये पिक कर लीजिए. तो -1 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 15, तो -1 इंटू 15, माइनस साइन फॉर्मूले का. नेक्स्ट 24 क्रॉस हो जाएगा -1 के साथ, सो विल राइट 24 इंटू -1, तो 24 इंटू -1. दिस इज द डिनोमिनेटर ऑफ q. नाउ नेक्स्ट स्टेप में इक्वल्स टू 1. अब 1 के डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? आप हाइड कर दीजिए ये कांस्टेंट वाले टर्म्स. नाउ व्हाट आर द टू नंबर्स यू आर सीइंग इन द फर्स्ट कॉलम? 24 15, सेकेंड कॉलम 48 60. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? पिक अप द फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट कॉलम. ये किसके साथ क्रॉस हो रहा है? 60 के साथ. सो यू राइट 24 इंटू 60, 24 इंटू 60, और ये साइन माइनस फॉर्मूले का. नेक्स्ट वापस यहाँ आ जाइए, 24 इंटू 60 माइनस, अब इस वाले नंबर पे आ जाइए 48 इंटू 15, 48 इंटू 50. राइट चिल्ड्रन, ये मेथड आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई. दिस इज सिंपली कैलकुलेशन. मल्टीप्लाई करके आप उसको माइनस कर दीजिएगा. तो व्हाट यू विल गेट इन द नेक्स्ट स्टेप चिल्ड्रन? यू विल ऑब्टेन -48
So P का denominator will be minus 48 plus 60 equals to Q will be minus 15 plus 24 equals to 1 upon 1440 minus 720. अब इसको आप माइनस प्लस का सब ये कब कर सकते हो अपना आप. दिस विल गिव यू 12, दिस विल गिव यू 9 एंड दिस विल गिव यू 720. नाउ अगेन 3 इक्वालिटीज़ आपको मिल गए. टेक फर्स्ट इक्वल टू थर्ड. सो P अपन 12 इक्वल्स टू 1 अपन 720 क्रॉस मल्टीप्लाई. सो P इक्वल्स टू 12 अपन 720. ये कैंसिल हो गया चिल्ड्रन. दिस विल गिव यू 1 अपन 60. सो P इक्वल्स टू 1 अपन 60. फॉर Q वैल्यू Q upon 9 equals to 1 upon 720. क्रॉस मल्टीप्लाई 9 upon 720. कैंसिल कर दीजिए 1 upon 80. So this is the value of Q. What next children? We have to put the value of P and Q in A. What is your A? A was 1 upon X equals to P and 1 upon Y equals to Q. So 1 upon X, how much P? 1 upon 60 we have calculated. Cross multiply X equals to 60. 1 upon y, q how much I have calculated? 1 upon 80. So in place of q put 1 upon 80. Cross multiply y equals to 80. So these are your final answers. X equals to 60 and y equals to 80. So what we will write at the end? Therefore the speed of the train, which is x we have assumed, is 60 km per hour, and speed of the bus, which we have assumed as y, is 80 km per hour. I hope children आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा. ओके चिल्ड्रन, बाय.